When I started Jahaniman, in fact, that was also not in my mind. I never thought that Jahaniman is going to be a profession for me. Instead, I started this as a mission. I have some mission in my mind. I'm very passionate about my mission. So that is the reason why I started Jahaniman. So before you people ask me about this question that why have you started Jahaniman, this is my answer, that Jahaniman is my mission. Okay. So now tell me, what do you want to ask? So, ma'am, it really fascinates me to look over Jahaniman. Of course, it's a beautiful channel. Jahaniman, the name itself, amazing name, really. So, my first question was, of course, you have given the answer before even I asked my question. How did Jahaniman came in existence? So, what is the mission of Jahaniman? Okay, so Mehraj, your first part of the question that how it came into existence, अभी उसका जवाब नहीं दिया मैंने, but I have told you that it is a mission of mine. What exactly is a mission? Because I think that I am a born teacher. My grandfather was a teacher, and my dada, my nana, my father, and my brother. So everybody in my family, my sisters, so everybody is teacher in my family. तो मैं बेसिकली टीचर्स की फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो ये हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है. और ये एक प्रोफेशन नहीं है, मेरे लिए एक पैशन है. सो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ टीचर, I was thinking that this is my mission to just help the people, reach out to the people, especially the children. And when we are among the children, that moment is a happy moment for us. Happiest moment, in fact. So when I came back to India from UAE, in UAE, you all know that I was quite well settled over there. I was the principal of a school. And there also, my attitude towards the student and the teacher was entirely different. The students were very close to me, while with the teachers, I was little strict. But with the students, I was very close, and I used to have lots of fun also with them, lots of activities with them. And I was enjoying my life over there as a teacher, as a principal, in fact. Then I came back to India in 2019, and then suddenly, due to COVID-19, we all know that we were locked down in the house. There was no interaction with the students. There was no interaction with the people. Then what to do? That was a big question. And it happened in March. And quickly I thought that let me just focus on this medium of YouTube medium, and let me spread my message, whatever I want to convey to my students, to the teachers, to the people, to my sisters, to my brothers. तो मैंने फिर जहानेमन, ऑलरेडी जहानेमन स्टार्ट हो चुका था व्हेन आई वाज इन यूएई. वहां पे स्टार्ट करने का रीजन क्या था? क्योंकि व्हेन आई वाज इन इंडिया, आई यूज्ड टू डू लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑन द चैनल्स, जैसे जी पे, ईटीवी पे, तो या फिर जैसे एनआईओएस का अपना चैनल है, एनसीईआरटी का चैनल है, एजुकेशनल चैनल, इवन इग्नू का अपना चैनल है, एजुकेशनल चैनल. तो मैं वहां पे जाती थी और मैं वहां पे प्रोग्राम्स करती थी, तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन होता था कि आई एम रीचिंग टू द मासेस, ज्यादातर लोगों तक मैं पहुंच रही हूँ. लेकिन जब मैं वहां गई यूएई, तो फिर ऐसा कुछ मेरे पास तो साधन नहीं था. इसलिए फिर वहां पे बहुत लेटली ये ख्याल आया, और वो भी हमारे एक हेडमास्टर जो चंडीगढ़ से आए थे, डीपीएस चंडीगढ़ से, उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि इफ यू आर सो पैशनेट अबाउट दोज वर्क्स, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन चैनल, एंड देन यू थ्रू दैट यू कैन स्टार्ट स्प्रेडिंग द मैसेजेस टू द पीपल. तो वहाँ मैंने इसे एज ए हॉबी स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, कभी कभी जब भी मुझे मन हुआ करेगा तो मैं उस पर कुछ वीडियोस डाल दिया करूंगी. एंड आई हैव मेड लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन मोटिवेशनल वीडियोस फॉर द यूथ, स्पेशली अल्लामा इकबाल का मैसेज लेकर के उस पर मैंने बनाया. और फिर मैंने पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग के वीडियोस बनाए, और फिर मैंने रोल मॉडल्स के वीडियोस बनाए, फीमेल रोल मॉडल्स, स्पेशली इंडियन रोल मॉडल्स सेपरेट एंड इस्लामिक रोल मॉडल्स सेपरेट. तो इस तरह से मैंने वहाँ पे वीडियोस बना के अपलोड किए. लेकिन जब यहाँ आई और यहाँ ये सिचुएशन आई लोग कोविड-19 की वजह से, तो मैंने इसे तो एक मिशन ही बना लिया कि हर दिन इस पे
देन आई विल डू द लाइव शोज, क्योंकि वीडियोस में क्या होता है ना कि अब तो इतने वीडियोस आने लगे हैं और इतने फॉरवर्डेड वीडियोस लोगों के पास जाते हैं कि आई डोंट थिंक कि लोगों के पास इतना वक्त होता है कि वो सारे वीडियोस को देखें. So I thought if I am going live and if I am conveying the message to the people that at this particular time I will be live and I on this particular topic I am going to speak, तो जो लोग भी उस टाइम पे जुड़ जाएंगे, जितने लोग भी उस टाइम पे आ पाएंगे, वो उससे फायदा उठा लेंगे. और जो अगर उस वक्त पे नहीं आ पाएंगे तो YouTube पे चूंकि वो वीडियो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वीडियो बन जाती है, तो वो बाद में भी देख लेंगे. तो लाइक इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स कि उस टाइम पे भी लोग फायदा उठाएं और फिर बाद में भी उससे फायदा उठाएं. देन आई स्टार्टेड डूइंग इन अप्रैल एंड स्टार्टेड विद Ramadan videos, Ramadan programs, and the holy month of Ramadan is a blessed month. Because of that, Alhamdulillah, now this channel has gained lots of viewers, lots of reputation, and lots of services we are giving, and you are an integral part of this channel. Thank you very much for being associated with us. Welcome, ma'am. Beautiful, really beautiful. Amazing. Now, my second question is, why did you keep this channel's name Jahaneman? What made you keep it? Okay, so the name Jahaneman, it's again history behind it. You know, Jahan means world and Man means mind. So Jahaneman means my world. We never decide that in this world for whom we are born. Okay, my existence belongs to the children, or it belongs to the women, or it belongs to the whole community, or it belongs to the entire world. तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें क्या लगता है ना मेराज कि ये जो हमारे मम्मी पापा है यही हमारी दुनिया है. तो फिर मुझे याद है कि मैं अपने पापा को समझती थी कि दुनिया का सबसे ज्यादा काबिल इंसान, जो भी क्वेश्चंस पूछती थी सबका जवाब उनको आता था. तो मैं सोचती थी कि अरे मेरे पापा को कितना आता है, कितने नॉलेजेबल है वो, मुझे इनकी तरह बनना है. फिर जब मैं बड़ी हुई, जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने लगी, तो फिर मुझे लगा कि मेरे प्रोफेसर सबसे ज्यादा काबिल है. अब फादर क्या है वो बैकग्राउंड में चले गए, अब प्रोफेसर सामने आ गए. तो फिर मुझे लगा कि मुझे इनकी तरह बनना है. फिर उसके बाद जब हमने बाहर की दुनिया के बारे में सोचा कि और भी दुनिया है, इंडिया के अलावा भी और दूसरे कंट्रीज हैं और भी वर्ल्ड हैं, देन वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ ग्लोबली कि हमें ग्लोबली कुछ करना है. तो इस तरह से आई वॉज अनेबल टू डिसाइड कि क्या नाम रखूं, मैं किसके लिए काम करूं, मैं बच्चों के लिए काम करूं कि मैं टीचर्स के लिए काम करूं कि मैं पेरेंट्स के लिए काम करूं कि मैं सिस्टर्स के लिए काम करूं कि मैं इंडियंस के लिए काम करूं कि मैं सबके लिए काम करूं. देन फाइनली आई केप्ट द नेम Jahaneman, means my world, this world belongs to everyone. So we are working for everyone. There is no specific criteria or a specific section of the society that we are dealing with. ये सबके लिए है, इसीलिए इसका नाम Jahaneman है. Really nice, and of course, whatever you told was exactly, perfectly true. Of course, and that's the end of my question. I was really curious to know about your journey, especially Jahaneman. It was like one of my favorite YouTube channels, and I was really eager to know about your journey. First of all, why did you keep it? Why did you keep the name Jahaneman? And you have, questions. Okay, so Miraj, certainly I'm going to give you an answer. And Jahaneman, why I kept the name, I told already that I told you that I kept the name Jahaneman. Now, secondly, my journey was not easy, because I am, you can just guess my age, I was on the position of a principal, and then I was working with educationists, with the teachers, with training them, guiding them, having the planning and the strategies and this type of work. And then suddenly then you have to behave like the people who are in the 20s or those who are the teenagers, because this is a hobby for them. So it was little difficult as far as the technical things are concerned. It requires lots of technical expertise. So that was difficult. And I remember that initially when I made my first poster and design, so my son was the one who laughed at it the most. And you will not believe, one gentleman who was like
very close, and we used to discuss lots of things about education and about other things. When he pointed out that your design is so miserable, because I used to make and I used to publish it. So he pointed out, then what I did do that, I have blocked him. I said, no, I'm not going to listen to him. So because when you are in a mission, then you don't bother about all these things. Okay, let the people say whatever they are saying. I was fully aware that my technical hands is very weak. It's not because when you are a principal of a school, you have lots of staff, you have IT people, you have your secretary, you have your teachers, you have your admin people, so everybody helps you. You have to just apply your mind. But यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, सब कुछ खुद करना था आपको. तो इसलिए आपके फ्लायर डिजाइनिंग से लेकर के वीडियो मेकिंग से लेके अपलोडिंग से लेके सारा काम आपको खुद करना है. तो ग्रेजुअली आई पिक्ड, एंड पिक कैसे किया कि बहुत दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा. मैं थोड़ा धीरे धीरे अपने आप जो होता है ना, वो जो मेथड होता है जिसमें आप गलतियां खुद करते हैं और फिर सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, तो उस मेथड से मैं सीखती रही. देन फाइनली आई अटेंडेड वन वर्कशॉप, and that helped me, that helped me quite a lot in that the technical aspects of the channel, how to monetize is, then how to have the good videos, then how to upload the things in a better way, then all these things, how to tag the people, how to tag, then how to write the descriptions and all these things. Like there are so many technical aspects. Then that has helped me. And then now journey is quite, still we are learning every day something new, this whole entire digital world is an ocean. And in this, from this ocean, whatever pearl you can pick, it's up to you. If the people are picking more, then more they are richer. If the people are picking less, so they are less richer. That is the difference. कि कितना ज्यादा आप उससे निकाल सकते हैं और उससे कितना ज्यादा आप अपने को फायदा पहुंचा सकते हैं और दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं. तो ज़ेबा, निशात, do you want to ask something? Yes, ma'am. I want to know that my first question is that कि आप किस जगह से हैं और आपकी तालीम कहाँ से आपने ली. आप यहाँ आप एक जैसे कि हमें पता है कि आप दरभंगा के एक छोटे से गांव में काजीपुर में रहती थी, वहां से लेकर के आप UAE के तक जो पहुंची, तो उसके पीछे सफर क्या था और आपको वहां तक पहुंचाने के लिए क्या मोटिवेशन, ऐसा क्या लोग थे जो आपको यहाँ से वहां तक पहुंचने में, ऐसा क्या मैम जानना चाहते हैं कि आप बहुत सारा सैक्रिफाइस भी की होंगी, बहुत कुछ देखी भी होंगी, क्योंकि एक लड़कियों को बाहर जाकर पढ़ना समझ सकते हैं मैम, तो क्या आप बता सकती हैं मैम? यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एंड इसके लिए तो देखिए, एक लड़की का बाहर निकल के जाना और पढ़ना, तो उसमें मेरा क्रेडिट नहीं है, मेरे फादर का क्रेडिट है. क्योंकि मेरे गांव में भी यही था कि लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे. और जब गांव में जो मदरसा था वो 5वीं तक का मदरसा था, उसमें तो लोग पढ़ाते थे, लेकिन उसके बाहर के लोग नहीं सोचते थे पढ़ाने का. क्योंकि जो उसके बाद मिडिल स्कूल और हाई स्कूल था वो थोड़ा सा दूर जाके था, कई किलोमीटर आगे जो चौक होता है ना, कलवाही चौक, वहां था, तो वहां लड़कियों का जाना मना था. तो फिर मेरे फादर चूंकि खुद हेडमास्टर थे, और मैंने बताया कि मेरे दादा, मेरे नाना सभी टीचर हैं, और मेरे दादा तो इस लेवल के टीचर थे, शायद कि उस लेवल तक तो अभी हमको भी पहुंचने में टाइम लगेगा, कि वो उस जमाने में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन और गांधी जी वगैरह वारधा बेसिक स्कीम पे काम कर रहे थे, तो ही वाज आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट कमिटी. तो वो उस लेवल के उस जमाने में वो टीचर थे, जो कि वहां से निकल करके बिहार और दरभंगा के एक छोटे से गांव से निकल करके वो दिल्ली में आकर के फिर यहाँ वो काम कर रहे थे. Then naturally that was in my mind that my grandfather was like this. And then हमारे जो नाना थे वो भी उसी गांव में रहते हुए उन्होंने ग्रेजुएशन किया था. He was the first graduate and he was the headmaster of a government school. तो अगर हम अपने दोनों दादा की अगर हम पोजीशंस को देखें, नाना और दादा की, तो उन्होंने उस जमाने में बहुत अचीव किया था, एक हाई पोजीशन अचीव की थी एजुकेशन में. तो इसलिए फिर मेरे वालिद साहब खुद हेडमास्टर थे, तो उन्होंने हमें फिर हॉस्टल में भेज दिया था. When we were in the hostel, तो फिर जाहिर बात है मेरी अम्मी को ज्यादा सुनना पड़ता था, लोग बहुत कुछ सुनाते थे, कहाँ भेज दिया बेटियों को. 2 हम थे बहनें, एक मेरी बड़ी बहन थी, एक मैं, तो दोनों साथ साथ गए थे हॉस्टल के अंदर.
फिर सबने बहुत कुछ कहा, बहुत सारे इल्जामात लगाए, लेकिन फिर मेरे वालिद साहब ने उनकी बात नहीं सुनी और वो हम कंटिन्यू करते रहे पढ़ाई में। फिर मेरी बड़ी बहन की शादी कुछ अर्ली एज में हो गई थी, जैसे कि हमारे यहाँ रिवाज था 13-14 साल में शादी होने का। तो जैसे मैम, जैसे कि बहुत सारे लोगों का हमारे समाज में ये कहना है कि लड़कियों को बाहर पढ़ाई क्यों, मतलब पढ़ाने के लिए क्यों भेज रहे हो, कि लड़कियां इससे बिगड़ जाएंगी। तो क्या लड़कियां अगर घर में रहती है तो क्या वो नहीं बिगड़ती हैं? तो क्या हाँ, तो इसका आप ये जवाब तो उनको जाके दो जो कहते हैं ऐसा, क्योंकि मैं तो नहीं सोचती। और आज तो वैसे भी बहुत ही स्पेशल डे है और मुझे खुशी है कि हम सब लोग बहुत ही स्पेशल डे पे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये तमाम चीजें। आपको मालूम है ना क्या स्पेशल डे है आज? मेराज को मालूम है? यस मेराज? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। यस, आज तो गर्ल चाइल्ड डे है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स दैट वी आर गर्ल्स। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने हमेशा आई हैव सेलिब्रेटेड बीइंग अ वुमन। ये एक ऐसी पोजीशन है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं सोचती हूँ अगर मैं औरत या लड़की नहीं होती तो शायद मैं कुछ नहीं होती, तो शायद फिर वही पसंद करती कि मैं चिड़िया हो जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत। तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है कि लड़की होना, और लड़कियों को इक्वली अगर हम एजुकेशन देते हैं तो वो प्रूफ करती हैं, वो अपने आप को अपने खानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सबके लिए एक सहारा बनती है। और आज की तारीख में तो कौन इंसान ये नहीं मानेगा, आज जितना लड़कियां अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हैं, देखिए माफ करना, उतना लड़के नहीं कर रहे अपने पेरेंट्स के लिए। वो तो है। क्योंकि वो क्या होता है ना, वो फिर थोड़ा सा गैप आ जाता है, वो दूसरी लड़की से शादी होती है उनकी, तो जिस दूसरी लड़की से शादी होती है उसका उतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है इस फैमिली से, जितना कि एक लड़की का खुद अपने पेरेंट्स से इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि जैसे भी हो, और लड़कियों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखो, अगर हमारे पेरेंट्स ने बाहर भेजा तो हमने भी ये प्रूव करके दिया कि सिर्फ हम पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं, हम कुछ और नहीं करने जा रहे हैं। क्योंकि कई लड़कियां क्या करती हैं, मिस यूज करती हैं बाहर निकलने का, उसका नाजायज फायदा उठाती हैं, दूसरे गलत हरकतों में लग जाती हैं, फैशन परस्ती में लग जाती हैं, ज्यादा खर्चे कराती हैं, ज्यादा पैसे मांगती हैं, और फिर पेरेंट्स फिर घर में आकर के रोब जमाती हैं, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ और मुझे तो ये आता है। अरे मम्मा तुमको क्या आता है, तुम तो गंवार हो बिल्कुल। इस तरह का एटीट्यूड उनका हो जाता है। तो ये सब भी गलत चीजें हैं, दोनों की जिम्मेदारियां हैं। तो खुदा का शुक्र है कि मेरी भी शादी सही तरीके से स्कूल के बाद हो गई थी, स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद 18 इयर्स में। तो फिर मैं जब यहाँ दिल्ली आई तो अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर मेरा एक दूसरा सफर जो है वो एजुकेशन का शुरू हुआ। दैट इज माय सेकेंड फेज ऑफ लाइफ। Then I started studying along with my own children, and then along with my teaching. Then I did all my qualification like graduation, then post graduation. I did many post graduations क्योंकि मुझे बहुत शौक था। मुझे लगता था जब मैं दिल्ली में हूँ हर साल कोई ना कोई एग्जाम देना चाहिए। Then I did masters in Arabic, then masters in Urdu, then masters in English, and then masters in education, and then I did PhD. So तो इसलिए मेरा ये सफर जो है वो जारी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच ज़ेबा। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कि भाई यूट्यूब जो है वो एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि जब आप गौर करेंगे और जाके आप सर्च करेंगे कि जो हाईली रेस्पॉन्सिव यूट्यूबर्स है, यानी जिनको लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत से जो टॉप के हैं, तो उनमें आप ऐसे अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो क्या आखिर ऐसा कर रहे हैं खास जिसकी बिना पे वो इतने मकबूल हो रहे हैं। तो मैं अगर उसको एक वर्ड में आपको बताऊं कि अगर यूट्यूब के कामयाबी को अगर हम एक वर्ड में नापे, तो आपने बहुत टाइप्स के इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा। सुना है ना कि एक इंसान कई तरह से इंटेलिजेंट होता है। यस। एक इंसान इंटेलिजेंट होता है जैसे कि जिसको मैथमेटिक्स आती है वो लॉजिकल इंटेलिजेंस होता है, जिसको लैंग्वेज आती है तो वो अलग इंटेलिजेंस होता है, जिसे सिंगिंग आती है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंट होता है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दी है उससे भी हम लोग कहीं आगे निकल गए हैं अब। तो जो यूट्यूब, मुझे लगता है कि जो यूट्यूब एज ए यूट्यूबर कामयाब होते हैं उनके अंदर जो है वो है कनेक्शनल इंटेलिजेंस। Miraj, could you Yes, ma'am. understand that what exactly is connectional intelligence? Well, I can only guess. Might be connecting with the audience or interacting with your viewers.
ऐसा कौन सा क्लास जो आपका Yes, मैनेज करेंगे? that अब is वो correct. जाने उसका That मतलब is मैं भी true. तो ये ना Connectional intelligence means that we should know how to connect with the people. ठीक है. अब उसमें we have to use all our like faculties. We have to use our contacts, we have to use our intelligence, we have to use our language skills, we have to use our critical thinking skills, we have to use our creativity. So all these things we have to connect together, and then we have to make something that is going to directly appeal the audience. So this intelligence is very much required for this, for if you want to be a YouTuber. And although you will be very surprised to know that some of the YouTubers, they are very introvert. ठीक है. जैसे वो यहाँ तो आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के डालते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, बट इफ यू आर गोइंग टू मीट देम फेस टू फेस, तो आपको लगेगा कि उन्हें वो ज्यादा कंफर्ट होते हैं अपने साथ काम करने में. Like they are more happy with themselves. तो वो although वीडियो में कभी आपको ऐसा शो नहीं होगा कि जो ये यूट्यूबर्स हैं वो इंट्रोवर्ट होंगे. वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि दे आर सो बोल्ड एंड कॉन्फिडेंस एंड एक्सट्रोवर्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, बट ऐसा होता है. तो जो असल में मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग खुद अपने आप से लाइक मोहब्बत करते हैं, खुद अपने आप को पसंद करते हैं, अपने आइडियाज को, अपनी चीजों को, अपनी बातों को, दे आर द वंस हु हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस कि यस आई हैव समथिंग इन मी एंड आई हैव टू गिव दैट टू द वर्ल्ड. वो फिर एक अच्छे यूट्यूबर बन पाते हैं. Yes, Ashfaq, welcome to the show, my dear. How are you? Fine, ma'am. Assalam, ma'am. Yes, I'm walaikum speaking assalam. sorry. Some reason की वजह से मैं लेट से ज्वाइन कर पाया मैम. अच्छा, तो कोई बात नहीं है. अभी हम सब यहीं पे हैं और अभी थोड़ी देर और भी रहेंगे. तो आप ये बताएं कि क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैम मैं जानना चाहता हूँ एक यूट्यूबर बनने के लिए, और एक्चुअल मैम लाइट ऑफ है, लाइट कटी हुई है मैम, तो अच्छा आई एम अच्छा, नॉट विजिबल. कोई बात नहीं है, इट्स ओके. यस मैम. तो मैं जानना चाहता हूँ एक यूट्यूबर बनकर, और मेरे अंदर जो है कुछ भी है एबिलिटी है या फिर कुछ भी मैं जानता हूँ उसको यूट्यूब पे आवाम तक पहुँचाने के लिए, और